সেতু the bridge সেতু the bridge সেতু the bridge সেতু the bridge। নমস্কার, আমার নাম শিল্পা দাশগুপ্ত। পড়াশুনো এবং কাজের সূত্রে আমেরিকাতে থাকি। তবে কাজের পাশাপাশি আমি একটা ফোক টেল স্টোরি টেলিং পডকাস্টের হোস্ট এবং প্রডিউসার। তবে আমার সব থেকে বড় পরিচয় হলো আমি একজন বাঙালি। বাংলায় কথা বলি, বাংলায় চিন্তা করি এবং এত দূরে থেকেও বাংলা সংস্কৃতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করি। সেই জায়গা থেকেই সেতুর সাথে পরিচয়। আপনারা আমাকে হয়তো দেখেছেন সেতুর নানান অনুষ্ঠানে এর আগেও। সেতুর সাথে আছি, আর সেতুর জন্মদিনে পার্টিসিপেট করব না সেটা তো আর হয় না। তাই সেতুর জন্মদিন পালন করতে জন্মদিনের স্পেশাল প্রোগ্রাম নিয়ে চলে এসেছি। প্রথমেই বলি, আ ভেরি 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 হ্যাপি বার্থডে সেতু। হ্যাপি শব্দটা বিগত কয়েকদিনের আম, মধ্যে ব্যবহার করতে একটু কষ্ট হয়েছে। গলায় কি একটা যেন আটকে আছে মনে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আজকে যা পরিস্থিতি, তাতে এত দূরে বসেও মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে রয়েছে। বলা ভালো, মন খারাপের থেকেও বেশি রাগ হচ্ছে, হেল্পলেস মনে হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে। গতকাল আমার এক বন্ধু আমার সাথে দেখা করার কথা ছিল অফিসের পরে। মেয়েটিও বাঙালি, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না। যদিও অনেক দিন আগে করা একটা প্ল্যান, তাও মনে হচ্ছিল যে ঠিক মুড হচ্ছে না আড্ডা মারার। এইসব ভাবতে ভাবতে ভাবছি যে ক্যান্সেল করব। দুপুরে ফোন করেছি ইনফ্যাক্ট ক্যান্সেল করার জন্যেই। আমার ওই বন্ধুটি অনেক কথা বলার পরে বলল, আজকের প্ল্যানটা ক্যান্সেল করবি? মনটা ভালো নেই। আমি একটু স্বস্তিই পেলাম। এই কারণে নয় যে প্ল্যানটা ক্যান্সেল হয়েছে, অবশ্যই নয়। তবে এটা ভেবে যে আমার মতন এরকম একটা দম বন্ধ করা এক্সপিরিয়েন্স আরো হাজার হাজার বাঙালি করছে দেশের বাইরে বসেও, এবং মনে হলো যে আমরা হয়তো এই যুদ্ধে একসাথে আছি। এই সলিডারিটিটা খুব খুব ম্যাটার করে যায় এই রকম ধরনের পরিস্থিতিতে। তবে ওই যে বলে, দ্য শো মাস্ট গো অন। এত কষ্টের মধ্যেও কিছু ডাক্তাররা এখনো পেশেন্টদের দেখে চলেছেন, হেল্প করে চলেছেন, তাদের সুস্থ করার চেষ্টা করে চলেছেন। ঠিক তেমনই আজ সেতুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানও আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরো একবার সেতুকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করি আজকের এই স্পেশাল অনুষ্ঠান। সূচনা হোক মিষ্টি মুখ করে, মানে একটা ছোট্ট পুচকি মিষ্টি মেয়ের গান দিয়ে। নাম তার রুহানি, বয়স 6। ছোট ভাবছো তাকে? তা কিন্তু এক্কেবারে নয়। রুহানি থাকে নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লেটে এবং পরে কক্স মিল এলিমেন্টারি স্কুলে। নাচ, গান আর পেন্টিং করতে তার সব থেকে বেশি ভালো লাগে। আর এই সব কিছুতে তার পার্টনার হলো তার বন্ধুরা আর তার ছোট্ট যমজ বোন মিশা। রুহানি আমাদের শোনাবে, কি শোনাবে সেটা শুনে নি ওর থেকেই। পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট, আর কেবেলের হাতে জন্মে রাখা বোকা বাচ্চাতে বন্দি। আহা হা হা, আহা, আহা হা হা, আহা, আহা হা। ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ, হাত হাতের মুঠোতে খুঁজে গেছিলেন হাসি মনার বন্দি। আহা হা হা,
আগুনের সাথে সন্ধি আহা হা হা আহা আহা হা হা পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসুক এই যে একা তোমার আমার ফারাকের নয় বন্দি আহা হা হা আহা আহা হা স্বপ্ন বেচার দরকার জায়গা তুমি তোমার আমার চোখ ধারণার এরিয়া শুধু বন্দি আহা হা আহা 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 তার চেয়ে এসো খোলা জানলা পথ ভুল করে কোনো রাস্তায় হয়তো পেলেও পেতে পারে আর সঙ্গী আহা আহা গানের থেকে এবার একটু গিয়ার শিফট করে আঁকায় যাওয়া যাক। হাতেই আঁকা, তবে মাধ্যমটা একটু আলাদা। এটি হচ্ছে ডিজিটাল পেইন্টিং। আর্টিস্ট সুজাতা চক্রবর্তী। চাকরি সূত্রে থাকেন সুইডেনে। ছোটবেলা থেকেই আঁকা শেখা। রবিবারের মাটন খাওয়া আর আঁকা, এই দুটির হাত ছাড়েননি সুজাতা এখনো। তাই আঁকা এককালের হবি হলেও এখন প্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নমস্কার, আমি সুজাতা চক্রবর্তী। কর্মসূত্রে আমি স্টকহোমে থাকি। উইকেন্ডে আমি যখনই সময় পাই আমার ছবি আঁকতে খুবই ভালো লাগে। আমি মেনলি পোর্ট্রেট, ক্যারিকেচার সেই জনরেতে বেশি সময় দিই। মিডিয়াম হিসাবে আমি ইউজ করি ওয়াটার কালার, গ্রাফাইট, কখনো ডিজিটাল মিডিয়াতেও আমি ছবি এঁকে থাকি। আজকে যে ছবিটা আমি শেয়ার করছি সেটা আমি এঁকেছিলাম এই বছরের মার্চ মাসে। আমি নাম দিয়েছি ছবিটার ফাইন্ডিং সোলেস অ্যামং কেওস। ছবিটা আঁকা হয়েছে ডিজিটাল মিডিয়ামে। আমাদের প্রত্যেক দিন জীবনে আমরা দৌড়তে থাকি একটা কাজের পরে আরেকটা কাজ, সর্বদাই একটা ব্যস্ততার মধ্যে থাকি আমরা। আর সেই ব্যস্ততার মাঝেই আমি ফিল করি যে আমরা আমাদের নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমাদের যে নিজের স্ট্রেংথ, আমাদের নিজের ক্রিয়েটিভিটি, যেটা আমাদের সবচেয়ে করতে ভালো লাগে, সেই জিনিসটাকেই আমরা আস্তে আস্তে ভুলে যাই। বাট সেটা তো করলে চলবে না। আমার মনে হয় সেই নিজেকে খুঁজে পেতে গেলে নিজেকে সময় দেওয়া খুবই দরকার। আমাদের এই রেগুলার জীবন থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে সেই নিজেকে সময় দিয়ে নিজের স্ট্রেংথের ওপরে কাজ করে যে খুশিটা পাওয়া যায়, সেই খুশিটা বোধহয় আর অন্য কিছুতেই আমাদের কাছে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সেই ভাবনাটা দিয়েই আমি এই ছবিটা এঁকেছিলাম। আশা করি আপনাদের এই ছবিটা ভাল লাগবে। আর শেষে সবচেয়ে আমি বলতে চাই, ধন্যবাদ দিতে চাই সেতুকে সমস্ত দেশ বিদেশের বাঙালিদের একত্রিত করার জন্য। আর আমার তরফ থেকে সেতুর জন্য রইল জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।
নমস্কার। গান হয়ে আঁকা হয়ে এবার আবার গানে। তবে এবার গানের সাথে গানের ব্যাপারে কথাও আছে, গায়িকার সাথে কথা আছে। প্রিয়ানি বাণী পণ্ডিত। প্রিয়ানি মুম্বাইয়ে থাকেন, হিন্দি এবং নানান ভাষার ছবিতে গান গেয়েছেন অলরেডি। আপনারা হয়তো অনেকেই প্রিয়ানির গান শুনেছেন। একটি বিশিষ্ট মিউজিক রিয়ালিটি শো এর উইনারও প্রিয়ানি, এবং আরো বেশ কিছু রিয়ালিটি শোতে প্রিয়ানিকে আমরা দেখেছি এর আগে। প্রিয়ানি অসম্ভব ওয়েল ট্রেন্ড একজন সিঙ্গার বলাই বাহুল্য, এবং তিনি একজন মিউজিক প্রডিউসারও। আর খুব ইন্টারেস্টিং যে প্রিয়ানি ইন্ডিয়ান রাগ প্রধান গান নিয়ে একটা বেশ স্পেশাল প্রজেক্ট করছে। এই সব কিছুর ব্যাপারে প্রিয়ানির সাথে আমি কথা বলেছি। তাহলে প্রেজেন্ট করছি নেক্সট পার্টে প্রিয়ানির সাথে আমার আড্ডার প্রথম ভাগ। Priyani, we briefly met before this, but again, my name is Shilpa Das Gupta. I live and work in US. But before coming here, I was a radio jockey and media professional back in India. Primarily worked in Kolkata, a little bit in Bangalore and Delhi. I have also been a voiceover artist. But वो होता है ना, if you have worked in the creative field, no matter how much you drift away, you intend to come back in some form. तो यहाँ पे आने के बाद भी, काम करने के बाद भी वो भूख था कि कुछ क्रिएटिव करे. That's why I started my own podcast. So I have a podcast that I host and produce. It's on folklores. I love folklores क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ बहुत सारे कहानियों के साथ. Very very staple part of Bengali, household. I think Indian household, I should say. तो वो एक था कि स्टोरीज को लेकर कुछ करें, वहां से ये पॉडकास्ट का आइडिया जर्मिनेट हुआ. तो yeah, that's a little bit about me. To my audiences, I want to say I am today with a beautiful, beautiful singer, Priyani. I have heard your songs and I've always very much appreciated how beautiful and how expressive you are. It just touches my soul. That much I can say. And to all the audience who knows Priyani, I'm sure most of you know her. And who doesn't know, please go to YouTube. She has a channel. There are beautiful numbers that she has sung. So please check it out if you haven't already. Priyani has a very strong and very rich background in music. I think now it should be more than probably 20 years you have been in music. Now, first of all, namaskar, whoever is listening today. आपने introduce कर ही दिया मुझे. My name is Priyani Vani Pandit, and it's been 20 years. Yes, I've been working in music industry since 20 years. I started as a reality show contestant. I was the female winner of Voice of India, and Saregama and Jojita Bai Superstar, and like 4-5 reality shows I've done, and then I've done one a TV serial show as an actor also. So I was quite popular at that time, and because of that, my like a lot of people know me because of my face, because I used to come on television. And after that, I've sung a couple of songs in Bollywood movies, and I've started my own journey as an independent artist since 2017. So I've been composing and singing and posting my own stuff on YouTube, and I think that's the beautiful thing when artist gets the chance to, when artist gets the freedom to create whatever Absolutely. they want. Absolutely. So yeah, it's been quite a journey, and I'm so happy that I could do whatever I wanted in my life. This is my passion and profession and everything, and I'm living my dream. Absolutely. Priyani, शुरू से शुरू करते हैं थोड़ा सा. Yeah. Tell me about your growing up days. आप इंदौर में पली बड़ी है ना? अच्छा. हाँ जी, मैं इंदौर मतलब एमपी से हूँ. मैं पहले इंदौर के पास में एक छोटा सा गांव है झाबुआ, वहाँ की मैं हूँ. वहाँ से मैंने अपने 10th तक पढ़ाई की है, और वहाँ पे लकीली आई थिंक उस छोटे से गांव में एक ही म्यूज़िक टीचर थी, और शायद वो मेरे लिए ही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. व्हेन आई वाज लाइक 8 years old, माय फादर यूज्ड टू सिंग, बट वो शौकिया गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे, तो ही वांटेड मी टू लर्न. एंड लकीली उस छोटे से शहर में एक टीचर थी, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन आई केम टू मुंबई ऑन फ्रॉम 11th 12th, and I did my graduation there from music only. I did my 11th 12th and BA honors, everything in music.
And then I came to Mumbai and I did my master's from SNDT College. Hmm. And in the meanwhile, I was participating in a lot of like reality shows, and I used to do shows since I was 8 9 years old. So I was on stage since I was in because मेरे पापा गाते थे तो वो स्टेज पे हाँ लेके जाते थे. हाँ तो बहुत सारे कंपटीशन और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, आई वन इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल दैट टाइम. मतलब इन इंदौर आई वाज लाइक क्वाइट अ पॉपुलर नेम बिकॉज मैं हाँ हर कंपटीशन उस वक्त जीत जाती थी. तो राइट वो राइट अंधों में काना राजा जिसको बोलते हैं ना, इंदौर में मैं क्वीन थी. when I came to मुंबई, यहाँ पे तो मुझसे भी बेहतर लोग थे. तो या आई स्टार्टेड लाइक आई लर्न हियर ऑल्सो. यहाँ हाँ पे भी मैंने बहुत सारे गुरुओं से, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे मुर्तज़ा खान साहब से सीखा, और गौतम मुखर्जी से सीखा, और तोची रैना सर से सीखा, और पुरबैन सर से सीखा, और आई विल लर्निंग लाइक सो. या ऐसे करके मैं बस अब चल रहा है, और आई एम हैप्पी कि चल रहा है. नहीं नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे लिए जो सुनने वाले हैं हाँ. उनके लिए इट्स अ प्लेजर, दैट मच आई कैन से. एक बात या बताइए कि आप जब शुरू किए थे, तालीम हो रही थी एज अ किड, पैशन तभी से था कि आपको सिंगर ही बनना है, और इट वाज जस्ट लाइक पढ़ाई भी हो रही है, म्यूजिक भी हो रही है जैसे नहीं, नॉर्मली? आई थिंक हाँ. नहीं, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर, और आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन म्यूज़िक में भी म्यूजिक. एक्चुअली. सो क्या होता है कि छोटे शहरों में म्यूज़िक मतलब एक सिंगर ही होता है. जब आप यहाँ पे मुंबई एग्जैक्टली. आए तब हाँ एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा, यू कैन बी अ म्यूजिक डायरेक्टर, यू कैन बी अ लिरिसिस्ट, और यू कैन बी अ प्रोग्रामर और राइट टेक्नीशियन, यू राइट. कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन म्यूजिक. पर उस वक्त ऐसा होता था कि ये सिंगर ही होता है म्यूजिक ऐसा हाँ एक वेरी ट्रू. धारणा थी. बट या आई थिंक शुरू से ही मेरे अंदर एक वो सिंगर बनने की बहुत ज़्यादा एक लालसा थी कि मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है. कहाँ पहुँचना है मुझे मालूम नहीं था. आई नेवर dreamt of reaching somewhere, but I always dreamt of singing whole my life. That's great to know that you were so focused अपने Yeah. बचपन से ही कि you knew that this is something you want to do. आपको Yes. याद है आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस, at what age did you do? Yeah, I was 8 or 9 years old, I remember, and my first song on stage was "क्या हुआ तेरा वादा." अच्छा. Yeah. ओके. पापा ने मुझे सिखाया था और बोला था कि ये गाना गाओ, एंड ये वाला गाना मैंने गाया था. देन इसके अलावा स्कूल में तो बहुत गाती थी, बट हाँ. स्टेज पे जैसे बड़ा स्टेज जो था उस पे मैंने क्या हुआ तेरा वादा गाया था इंदौर में ही. आई ओके. रिमेम्बर. ओके. And what do you consider as your first big break? Uh, Big break as in you want me to mention the Bollywood movie or like Whatever you consider, मतलब होता है ना, एक माइलस्टोन आता है जिंदगी में कि इसके बाद लाइफ पूरा टर्न हो गया. मेरा आई थिंक अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ कि अगर लाइफ टर्न होने वाली बात, तो आई विल कंसिडर वॉइस ऑफ इंडिया वाज माय टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, क्योंकि आई वॉज द ओनली फीमेल इन दैट कॉन्टेस्ट जो बची थी, और आई वॉज द फीमेल विनर. एंड उस शो ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी, बहुत ज़्यादा. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइक बिफोर इट वॉज लाइक कि हाउ विल आई सर्वाइव इन मुंबई, बिकॉज मुंबई इज़ सो कॉस्टली एंड एवरीथिंग इज़ सो कॉस्टली हियर. एंड बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, एक हाँ. छोटे शहर से आना, मुंबई हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव सोचा करती थी. बट मुंबई ऐसा था कि मैंने मतलब लकी रहा मेरे लिए. मैं यहाँ मुंबई पढ़ने के लिए आई, हॉस्टल में थी, और विद इन 15 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सारेगामा. देन मैं सारेगामा में गाने लगी, देन वॉइस ऑफ इंडिया का ऑडिशन दिया. एंड तो आफ्टर दैट आफ्टर वॉइस ऑफ इंडिया, सर्वाइवल वॉज सो ईजी बिकॉज आई यूज टू डू लॉट ऑफ shows आफ्टर दैट, international national shows. People started calling me for the shows, for the recording. So I think voice of India was my turning point in my life, and उसने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी जो थी उससे सब कुछ. और बाकी जो आगे हुआ वो तो सब आगे होता गया बिकॉज ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया इट हैपेंड. सो आई गिव द क्रेडिट टू वॉइस ऑफ इंडिया और गजेंद्र सर, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था. वाओ, अमेजिंग. एक बात बताइए, यू नो नॉर्मल पीपल थिंक
दे हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट रियलिटी शोज। कोई कोई सोचता है कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर हालांकि बहुत सारे लोगों को प्रेजुडिसेस भी है, वो Correct. अलग सोचते हैं। तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, of course, like you said, it has given you the great break, but after that, did life change for better for you? एज आई टोल्ड यू इट्स अ प्लेटफॉर्म। सी, यही गलत हो जाता है जब हम रियलिटी शोज़ को एक माइलस्टोन मानने लगते हैं कि हाँ, इसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही होना है। Right. जैसे जैसे एक कोई कंपटीशन में आप जाते हो तो ज़रूरी नहीं है वो कंपटीशन में आप जीतो या हारो, और उसके बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगर ही बनो, आप कुछ और भी बन सकते हो। वो जस्ट एक कंपटीशन है, उसको अगर एक कंपटीशन की तरह लें तो आई थिंक किसी के दिल में कोई मलाल नहीं रहेगा। आप स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन करते हो, हाँ, आप of जीतते course. हो हारते हो, हाँ, है ना। हाँ, समटाइम्स right, right. समटाइम्स आपका पेपर में भी नाम आ जाता है कि अच्छा हाँ, इस फलानी इसने बंदे ने ये किया, ये जीता। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर उस तरह से देखा जाए, हम क्या एक्सपेक्टेशन बहुत रख लेते हैं रियलिटी शो से, और उसकी वजह भी है बिकॉज व्हेन इंडियन आइडल केम या सारेगामा केम, आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग ब्रेक्स कि हाँ चलो इसको गवाते हैं, ये थोड़ा पॉपुलर नाम है, तो लोग एक्सपेक्ट करते, फिर उसके बाद लोग एक्सपेक्टेशन से आने लगे। जब पहले लोग आते थे एक्सपेक्टेशन नहीं होता था कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन है यार, जाएंगे गाएंगे, हाँ, हाँ, अच्छे जज हैं सब है, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन से आने लगे कि इसके बाद ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, दैट्स जस्ट आई थिंक वो एक कंपटीशन था। उसके बाद मेरे लिए सर्वाइवल ईजी था, ऑफ कोर्स मनी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर ब्रेक की बात करूँ तो आई वॉज गोइंग टू द स्टूडियोज़ एवरी डे। मैं अलग अलग स्टूडियो जाती थी, अपना डेमो देती थी। उसके बाद भी मैंने बहुत स्क्रैचेस गाए। जो भी गाने मेरे मूवीज़ में आए हैं वो एक्चुअली मैंने स्क्रैच गाए, कोई फाइनल के लिए कभी नहीं बुलाया किसी ने, और कोई रियलिटी शो के सिंगर को कभी कोई फाइनल के लिए नहीं बुलाएगा। वो स्क्रैच, क्योंकि यहाँ पे एक चलन है कि एक गाना 10 सिंगर गाएंगे, उसके बाद वो जज करेंगे कि कौन सी सिंगर की वॉइस जा रही है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, वो सब जज करते हैं। तो वो पार्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रगल वही था। वो ठीक हो गया या उससे ब्रेक मिल गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे मेन तो यह है कि मुंबई में सर्वाइवल था, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया आफ्टर वॉइस ऑफ इंडिया। तो इसीलिए वो मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। राइट। उनके लिए मुंबई आके सेटल होना इजी नहीं था, मम्मी पापा के लिए। तो दिस वॉइस ऑफ इंडिया एक्चुअली was helping me in that manner. But getting a chance in movies और getting a chance, और अगर आप वॉइस ऑफ इंडिया से चलो मुझे 10 शोज़ मिल गए, लेकिन अगर मैं 10 शो अच्छे नहीं करती तो उससे और 10 शोज़ नहीं मिलते। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, तो ये आप समझिए कि प्लेटफॉर्म ने मुझे एक वो दिया कि हाँ चलो तुम्हें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन उसके बाद चलना मुझे ही था। एग्जैक्टली। एवरी डे आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एवरी डे। रियाज तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें कि स्टूडियो जाना, लोगों से बात करना, रोज़ फ़ोन पे कंटिन्यूस टच में रहना कि नहीं ये है स्क्रैच जाके गाना। कई बार हमें तो स्क्रैच गाने की तो कोई, वी डोंट गेट मनी आफ्टर फॉर दैट, इवन इफ मतलब मुंबई में तो ऐसा हाल है कि अगर आपका गाना फाइनल भी हो जाता है तो यू डोंट गेट मनी फॉर रिकॉर्डिंग्स, you earn only from shows, right? So ये है कि अगर बहुत एक्सपेक्टेशन से गए ना तो फिर आपको बहुत हर्ट होने वाला है। मेरा मानना यह है कि इसको एक प्लेटफॉर्म मान के वहाँ पे ग्रो करने के लिए जाना चाहिए, बिकॉज आपसे भी बेहतर लोग हैं वहाँ पे। एवरी डे आपको एक चैलेंज मिलता है कि ये गाना आपको परफॉर्म करना है, आप बहुत ग्रो करते हो, बहुत ज़्यादा। 10 कैमरा है आपके सामने, 5 जजेस हैं आपके सामने, आपको परफॉर्म करना है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आप अगर ग्रो करने के इरादे से जाओगे तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि आप ग्रो करते हो, आप जीतो या हारो। आपने बहुत अच्छी पॉइंट कही है, क्योंकि आजकल सब कुछ का शॉर्टकट हो चुका है ना, सोशल मीडिया आ गया है, यू कैन बिकम अ स्टार और वायरल ओवरनाइट। तो सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका है, एटलीस्ट लोग मानते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि इट्स अ प्लेटफॉर्म, उसको लर्निंग के लिए ले, और देन इट्स अप टू यू, योर जर्नी। करेक्ट। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक लर्निंग है कि इवन इफ दे आर
planning to send their kids or trying to go themselves on a platform like this, it's not the end of the world. It's a Correct. learning platform. You take something, you make a lot of networking from there, you learn, you know people, and then you move on to your own journey. So Correct. that's a great learning. Thank you, Priyani. Thank you for Yeah. sharing that aspect. Because it's good to hear from someone who has won reality shows, who has been on multiple reality shows, not one, and You then know, before I came to Voice of India, I think I was rejected 8 times in auditions. wow, 8 times. And every time it was like मेरी जिद हो गई थी कि अच्छा इस बार भी रिजेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, अब मैं और अच्छा तैयार करके जाऊंगी, अब मैं और अच्छा तैयार करके जाऊंगी. तो एवरी टाइम आई वॉज ग्रोइंग व्हेन दे वर रिजेक्टिंग मी एज ए सिंगर. मेरी भूख और बढ़ गई थी कि मुझे और अच्छा करना है. किस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर से उस चीज़ पे काम करना है. अच्छा इसने ये गाया था तो अच्छा मैं भी ये गा के अपने आप को तैयार करती हूँ. तो मुझे right. लगता है ये कॉम्पिटिशंस ने मुझे बहुत हेल्प किया है एज ए सिंगर ग्रो करने में. और That's फिर उसके amazing. बाद जब व्हेन यू गेट द सॉन्ग, अ बिग सॉन्ग और अ बिग प्लेटफॉर्म, देन ये सारी जो स्ट्रगल है वहाँ पे दिखाई देती है कि एक्चुअली यू हैव वर्कड हार्ड. Yeah. तभी आपको ये निकल के आ रही है चीज़. Exactly. वैसे Exactly. अच्छा, एक बात बताएं, ये बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आउटसाइडर, एक मिडिल क्लास फैमिली से इंदौर से जाके बॉम्बे में सेटल करना, बॉम्बे की इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री में सर्वाइव करना एंड मेकिंग अ मार्क फॉर योरसेल्फ, नॉट जस्ट सर्वाइविंग. ये आपके लिए तो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था, आपके फैमिली के लिए भी चैलेंजिंग रहा होगा. So if you can talk a little bit about that transition from Indore to Bombay, not for just for you, but also for your family. आई थिंक जो भी क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ मेरे इस पूरी जर्नी का, वो मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ. क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए. ही सेक्रीफाइस्ड हिज जॉब, ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ, एंड ही वॉज लाइक ट्रैवलिंग विथ मी एवरी टाइम. यहाँ पे ऑडिशन के लिए लाते थे, फिर वापस नहीं रिजेक्ट हुआ तो वापस गए, फिर वापस लेके आते थे. तो आई थिंक उनके अंदर ज़्यादा जज्बा था और उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था दैट यू कैन मेक इट. उनके कॉन्फिडेंस की वजह से आई थिंक आई कुड सर्वाइव हियर. एंड ऑल द हार्ड वर्क आई थिंक माई फादर हैज़ डन. उन्होंने सारा हार्ड वर्क किया है, सब कुछ. मुझे फिर भी मुझे नहीं लगता, मुझे अपने लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं लगता बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि उन्होंने सारा स्ट्रगल किया है. एवरीथिंग लाइक घर, यहाँ पे घर ढूंढने से लेके यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग है, बहुत सारे 11th मंथ का वो सब होना. हमारा वहाँ खुद का घर था, हमने कभी देखा नहीं कि रेंट पे घर कैसे लेते हैं, यू नो. सो पापा ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा. और किससे मिलना है, किस म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना है, वो पूरा वो करते थे, रेकी करते थे. अच्छा आज यहाँ स्टूडियो जाना है, इसके पास जाना है, ऐसे करना है. समटाइम्स यू नो जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे तो खाना बनाना नहीं आता था, पापा को भी नहीं आता, बट ही लर्नड एंड ही यूज्ड टू कुक फॉर मी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको लगता है कि अगर फैमिली नहीं होती तो शायद मैं इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाती यहाँ आने की. मतलब कितनी भी अंदर आग है आपके सिंगर बनने की, सब कुछ है, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. कोई भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे वो इंसान सिर्फ अकेला नहीं होता है या अकेली नहीं होती है, उसके पीछे एक पूरा झुंड रहता है. यू से ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज समवन. आई थिंक जनरेशंस लग जाती है एक सक्सेसफुल आदमी को बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है. एब्सोल्युटली. तो काफ़ी जनरेशंस लगी, ऐसा मुझे हाँ लगता है. हाँ, very true. अच्छा, coming back to your musical projects after you came to Bombay, तब सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? नेटवर्किंग करना कि लोगों से मिलना, या फिर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू कल्चर, दिस न्यू इंडस्ट्री? I think understanding the culture was more difficult for me because इंदौर के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बहुत अंतर था. प्लस मैंने हमेशा क्लासिकल म्यूज़िक सीखा था इंदौर में, है ना. आई वॉज लाइक MA इन म्यूज़िक एंड रोज़ गुरुजी के पास जाना, रियाज करना. बॉलीवुड में गाती थी शोज़ पे,
लेकिन यहाँ का गेम कुछ अलग ही था। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि लाइक यहाँ पे मुझसे बेटर मुझे लोग दिखे, बेटर सिंगर्स दिखे, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि कैसे वो रियाज़ कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को अपने उसमें अप्लाई किया है। लाइक वॉइस कल्चर, वी नेवर लर्नड वॉइस कल्चर इन आर लाइक अपना इंदौर में कभी नहीं सीखा, कभी हाँ हाँ किसी को पता ही नहीं वॉइस कल्चर के बारे में। मैंने यहाँ के एक्सप्लोर किया वॉइस कल्चर क्या होता है, एंड इट विच मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कोई प्लेबैक सिंगर बनना है या लाइट म्यूज़िक सिंगर बनना है तो आपको वॉइस कल्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देन आई हाँ, फिर मैंने वो सीखा। देन थोड़ा सा वेस्टर्न भी सीखा कि थ्रो कैसे करते हैं, बिकॉज जो मेरी ट्रेनिंग थी वो प्योर क्लासिकल की थी, उसका थ्रो अलग था। तो ये आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये मुझे बहुत बॉदर करती थी कि मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, मेरा आवाज़ ऐसा क्यों नहीं सुनाई दे रहा, मैं रिकॉर्डिंग में जाती हूँ तो ये ऐसा ये रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वो एक्सप्लोर करते करते मैंने बहुत गुरुओं को भी एक्सप्लोर किया और बहुत सारे गुरुओं से सीखा। तो वो मुझे बहुत टाइम लग गया उसको, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राइट मुझे 3-4 साल है। मतलब वॉइस ऑफ इंडिया में चलो हो गया, वो तो फीमेल विनर हो गई और शोज़ भी कर रही हूँ सब, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट आई वॉज डूइंग विथ माई वॉइस। और मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रही हूँ, मुझे दूसरों के लेवल से मैं बहुत नीचे हूँ। तो उस चक्कर में मैं वो सब समझने में मुझे 3-4 साल लग गए कि हाँ अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है। राइट और फिर जब फिर जब गाने मिलने लगे, फिर जब गाने लगी तो लगा कि हाँ अब कुछ बात बन रही है, अब मज़ा आ रहा है। देन आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द लाइक करेक्ट, अगर आपको प्लेबैक सिंगर बनना है या सिंगर अच्छा बनना है तो करेक्ट ट्रेनिंग क्या होती है। वो अच्छा मैंने हाँ हाँ करेक्ट ट्रेनिंग अंडरस्टैंड किया, एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी की बेसिस पे मैंने आज अपनी खुद की एकेडमी खोली है और उसमें अपना खुद का करिकुलम बनाया है, वेयर आई हैव लाइक डिज़ाइन द करिकुलम द वे कि बिल्कुल जो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मैं नहीं सीख पाई थी और जब मैंने बाद में एक्सप्लोर की वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। वाओ तो अमेजिंग अमेजिंग या यू नो ये बारीकियां अगर आप प्रोफेशनल से ना सुनो तो इट डजंट यू डोंट गेट टू नो दिस और आपसे सुनने में मुझे बहुत कुछ रियलाइजेशंस भी हो रहा है लाइक एज आई एम लिसनिंग टू यू इट टेक्स सो मच इट्स नॉट जस्ट गोइंग इनटू अ स्टूडियो जस्ट सिंगिंग इट नो, उसके पीछे कितना कुछ होता है एंड बहुत कुछ नोबडी नोज इट क्योंकि लोगों को ना सामने वाला चीज दिखाई पड़ता है कि व्हाट यू आर डूइंग ऑन कैमरा या आप रियलिटी शो में आए विनर बने वगैरह वगैरह पर उसके पीछे आपके हर छोटे छोटे न्यूआंसेस पे काम करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड एक थैंक यू बहुत दैट छोटी वी आर सी चीज़ टॉकिंग मैं बताती हूँ कि मतलब व्हेन आई वाज इन वॉइस ऑफ इंडिया आई वाज सिंगिंग वन सॉन्ग एंड आई वाज रिहर्सिंग दैट सॉन्ग विद म्यूजिशियन, एंड मुझे शान दादा ने सिर्फ एक बात बोली, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग योर डायफ्राम। मैंने कहा ओके, मुझे ये पता ही कैसे नहीं करते था हैं हाँ ये कैसे होता है, ये कैसे करते हैं। हाँ तो वो एक बात मुझे लगी कि शायद कुछ टेक्निक गलत है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मेरे लिए नई थी, क्योंकि हमें कभी राइट बताया नहीं डायफ्राम से कैसे गाना है। ऑफ कोर्स हाँ ये हेड वॉइस है, ये चेस्ट वॉइस है, ये डायफ्राम से ऐसे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक सिंगर के लिए। एंड इट व्हेन यू गो टू लाइक अगर आप कोई बड़ा प्रोफेशनल काम के लिए जाते हो देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यार ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए मैटर करती है कैसे। हाँ बहुत मैटर करती है। आप कोई गाना परफॉर्म करने जा रहे हो स्टूडियो में, आपको उसमें क्या इमोशन डालना है और कहाँ से वॉइस निकालनी है, इट मैटर्स अ लॉट। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे आके भी पता चली, तो ये मेरे लिए, और इसीलिए मुझे लगा कि यार म्यूज़िक तो इतने सारे लोग सीख रहे हैं, क्यों वो बात नहीं आ पाती, क्योंकि दैट बेसिक इज़ नॉट देयर। एग्जैक्टली हाँ सो आई हैव गॉन थ्रू दैट। सो मैं चाहती हूँ कि सबको एक करेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, करेक्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। absolutely that's very very important that's the core right या टेल मी अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट क्या रहा है आपके लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एज इन सिंगिंग वाइज या हाँ कोई भी हो सकता है सिंगिंग वाइज या आपने जब एकेडमी शुरू की हो इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर म्यूजिकल करियर आई थिंक फर्स्ट पार्ट तो यही था जब मैं इंदौर से मुंबई आई, तो लर्निंग वॉइस कल्चर एंड वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और वो जब समझ में आ गया तो चीज़ें इजी हो गई। हाँ चैलेंजिंग मेरे लिए, अगर मैं सच बात बताऊँ तो आफ्टर माई फादर्स डिमाइज आई वॉज ब्रोकन, लाइक एकदम आई वॉज लाइक डिप्रेशन में और एकदम ब्रोकन। और उस टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट्स
आ रहे थे. आई हैड टू परफॉर्म आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया में भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे. मुझे एक्टिंग का ऑफ़र आ रहा था, ये आ रहा था. और मैंने पहले सोचा नहीं लूँ, और फिर मैंने कहा कि नहीं, यही चैलेंज है. मुझे इससे अगर बाहर निकलना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक वही मेरे पापा शायद कंसिडर करते कि Of यू हैव course, टू of गो course. ऑन. हाँ. उस टाइम पे जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, आई गॉट अ कॉमिक कैरेक्टर इन सब टीवी का एक शो था, तोता बैट्समैन, एंड मुझे एक कॉमिक कैरेक्टर दिया गया. आई वॉज डूइंग कॉमेडी. दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग कि मुझे कॉमेडी करनी है. एंड आई यूज टू लाइक ग्रीन रूम में आई यूज टू क्राई, एंड देन ऑन द फ्लोर आई वॉज जस्ट लाफिंग एंड मेकिंग फन. एंड सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि वो इमोशंस का गेम था बहुत ज़्यादा. एंड मेरे काम ने ही मुझे एक्चुअली उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद की. अगर डिप्रेशन से बाहर आने की बात करूँ तो काफ़ी मुझे म्यूज़िक ने बहुत हेल्प किया. मेरे काम ने बहुत, मैं अब उस 24/7 में सिर्फ काम करती थी फिर कि मुझे उस वापस वहाँ नहीं जाना है. सो वो चैलेंजिंग था मेरे लिए. वो फेज़ मेरे लिए जो 2-3 साल का था वो काफ़ी चैलेंजिंग था. अगर मैं वैसे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो तोता बैट्समैन वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. Wow, wow. Yes, I can totally feel you when you say this, because I lost my dad at a very young age, and it has been a very, very challenging journey. मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए भी. It was like हम दोनों एक साथ grow कर रहे थे. तो Correct. आपने बताया तो I could relate, you know. चलिए, बहुत सारी बातें हो रही है. I think it's high time we take a little break. Break मतलब हम ये एपिसोड खत्म करेंगे, पर Okay. प्रियानी और मैं दोनों वापस भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है, बहुत सारे गाना अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रियानी है और गाना ना हो, ये नाइंसाफी है ना. हाँ यार, वही मेरी आइडेंटिटी है. एग्जैक्टली. तो हम लोग वापस आएंगे चैप्टर 2 में. शेतु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. हैप्पी बर्थडे टू शेतु ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंसिडर मी द न्यू मेंबर ऑफ शेतु. आई रियली लव द कॉन्सेप्ट एंड रियली लव्ड द मेंबर्स ऑफ शेतु. एंड आज मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आगे जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही बहुत सारे जन्मदिन मनाओ. थैंक यू. প্রিয়ানির সাথে কিন্তু কথা আরো অনেকটা বাকি, আর সেতুর জন্মদিনের সেলিব্রেশনও এখানেই শেষ নয়, তাই আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে. আমরা ফিরবো এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেফ থাকবেন. অন্তত সেফ থাকার চেষ্টাটা করবেন, আমাদের সকলকেই করতে হবে. আর প্রতিবাদ কিন্তু থামানো যাবে না. ইনফ্যাক্ট আমরা কেউ যেন প্রতিবাদ না থামাই. এই পথটা কিন্তু লম্বা. আমরা সকলে জানি যে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এর কোনো ফল আমরা পাবো না, তবে ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যেন এই লম্বা পথে চলতে চলতে, প্রতিবাদ করতে করতে আমরা ক্লান্ত না হয়ে পড়ি. আমাদের এই প্রতিবাদ যেন চলতে থাকে, কারণ আমরা যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ওই শয়তানগুলো আবার হাসতে হাসতে যাবে আরো কোনো এক মেয়ের সর্বনাশ করতে. আর যারা এদের নিজের আঁচলের তলায় দুধকলা দিয়ে লালন পোষণ করছেন, তারাও আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, নিজেদেরকে ঈশ্বর ভাবতে শুরু করবেন. সময় এসে গেছে বুঝিয়ে দেওয়ার যে দেশের থেকে, দেশের মানুষের থেকে কোনো রং, কোনো দল, কোনো ক্ষমতা বড় নয়, হতে পারে না. প্রতিবাদ দীর্ঘজীবী হোক. দেখা হচ্ছে আবার খুব তাড়াতাড়ি সেতুর জন্মদিনের স্পেশাল প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে. নমস্কার. Shetu, the bridge. Shetu.